Hello everyone and welcome to Priyanka Fabulous, and today we are studying the English part of UPSC examinations, of NET examinations, SET examinations, bank laws, anything and everything that contains English, all the competitive examinations. And today what we are going to study in detail is comprehension. Now, one may consider that comprehension is the most easiest part, but you know something, you have to be able to deal with all of the questions properly. मतलब जो इजी होता है वो हमें पूरी तरह से आना चाहिए, ये हमारा गोल होना चाहिए. ओके, तो इस एंगल से अब हम इजी वाले पार्ट के साथ डील करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें इजी वाला पार्ट पूरी तरह आता है. ओके, तो हम लोग क्वेश्चन पेपर में से आज कॉम्प्रिहेंशन को स्टडी करेंगे. सो आई एम ओपनिंग द पेपर. ओके गाइस, तो ये है कॉम्प्रिहेंशन का पेपर and इस पार्ट का नाम है रीडिंग comprehensions. So we'll discuss this in detail. Okay, study the paragraph and answer the questions. Now it can range from 2-3 questions to around 12-15 questions depending on the paper which you are giving. Okay, तो हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे and फिर एनालाइज करेंगे कि किस तरह से आंसर लिखना है. The most important reason for this state of affairs perhaps is that India is the only country in the world to truly recognize the achievements of the Soviet Union, rather than merely focus on the debilitating faults that communism brought to its people. The people of India realized that the achievement of 100% literacy in a country much larger than its own and with similarly complicated ethnic and religious groupings, the rapid industrialization of a nation that was primarily agrarian society when the Bolshevik Revolution took place in 1917, the attendant revolutionary steps in science and technology, the accessibility of healthcare, primeval according to Western standards perhaps, but not according to the Indian ones, to the general population, and despite prohibition of the government of the time, the vast outpourings in literature, music, art, etc. are momentous and remarkable feats in any country. In contrast, all that West focused on were the massive human rights violations by the Soviet state on its people, the deliberate uprooting and mass migration of ethnic people from one part of the country to another in the name of industrialization, the end of religion. In short, all the tools of information were employed to condemn the ideology of communism, so much at variance with the capitalist thinking. The difference with the Indian perception, I think, here is that while the Indians reacted as negatively to what the Soviet government did to its people in the name of good governance, witnessed the imprisonment of Boris Pasternak and the formation of an international committee to put pressure for his release with Jawaharlal Nehru at its head, they took the pain not to condemn the people of that broad country in black and white terms. They understood that mingled in the shades of grey were grains of uniqueness. The Russians have never failed that characteristic in themselves. They have twice experimented with completely different ideologies, communism and capitalism, both in the space of a century. Okay guys, so first of all, जब भी हम comprehension पढ़ेंगे, हम सबसे पहले find out करेंगे कि which subject is it related to apart from English. तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि ये दो subjects से related है. Number one, it's related with history and secondly, it's related with political science. ये दोनों बातें इस paragraph को देख के समझ में आती है. So that way now we can इतने सारे subjects जो हमारे सर में है which are roaming in our head, we can let it relax. One sec. हाँ, तो इतने सारे जो subjects हमारे सर में घूम रहे हैं, we have done science, we have done history, geography, blah 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 blah. So now what we can go ahead and think is that okay, ये paragraph related है history और political science इन दो subjects से. तो अब क्या? अब हमें इस एंगल से देखना है कि क्वेश्चंस हमें किस तरह के पूछे गए हैं. ओके,
So let us go for that. तो क्वेश्चंस में जाते हैं. Which of the following statements according to the passage is correct? ये डायरेक्टली पैसेज से पूछा हुआ क्वेश्चन है. इट हैज नथिंग टू डू विथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी. सेकेंड क्वेश्चन है, द इंडियन परसेप्शन ऑफ सोवियत वाज ऑलवेज. दिस इज अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन. हमें एंटायर पैराग्राफ पढ़ने के बाद समझ में क्या आ रहा है कि इंडियंस ने रशियंस के बारे में क्या सोचा था, वो देखना है. एंड आखिरी दो क्वेश्चन है, द वेस्ट डिड नॉट फोकस ऑन द फॉलोइंग. डायरेक्टली ये क्वेश्चन है पैराग्राफ से, क्योंकि उसके लाइंस हमने पढ़े थे पैराग्राफ के अंदर. एंड द पैसेज इज, किस टाइप का पैसेज है, ये क्वेश्चन है इंग्लिश के बारे में. अब हम एक एक क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे. नाउ वी गो फॉर द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ओके, या. सो सबसे पहले which of the following statements according to the passage is correct? India took the heed of weak faults of Russian and policies and systems. The process of industrialization had already started when revolution took place. Okay, India seriously condemned the achievements of Russia. 100% literacy, वगैरह. Literature, art, music received a setback during communist regime in Russia. Okay, तो इसमें हमें कहाँ देखने को आता है. Achievement of 100% literacy was very very big thing. ये people of India ने realize किया है, ऐसे एक पैराग्राफ में यहाँ बताया हुआ है. ओके, ये जो पैराग्राफ है. और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दूसरी चीज यहाँ पे दिखाई गई है. रेवोल्यूशनरी स्टेप्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर वगैरह का किया है. ओके, एंड यहाँ पे ये भी बताया है कि प्रोहिबिशन ऑफ द गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट ने ना बोलने पर भी आउटपोरिंग्स मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं लिटरेचर, म्यूजिक एंड आर्ट में, जो काफी मोमेंटस एंड रिमार्केबल है. इसका मतलब इंडिया टुक हीड ऑफ द वीक फॉल्ट्स ऑफ द पॉलिसीज एंड सिस्टम्स, ये कहीं भी इधर तक आया नहीं है. लेकिन कंडेम्ड द अचीवमेंट्स, नो. कमेंडेड, यस. सो ये शब्द का मीनिंग हमें पता होना चाहिए. अब यहाँ पे कमेंडेड मतलब बहुत ज्यादा तारीफ करना, ये इस वर्ड का मीनिंग है. ओके, तो कमेंडेड इज अ गुड थिंग. इसका मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है. सी इज राइट. नेक्स्ट, लिटरेचर, आर्ट एंड म्यूजिक रिसीव्ड अ सेटबैक. नहीं, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वहां पे तारीफ की गई है आउटपोरिंग की. आउटपोरिंग मतलब उसमें हमें ये पता चलता है कि यार कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है, तो ये करेक्ट नहीं है. सो डी इज नॉट राइट. The process of industrialization had already started when the revolution took place. The rapid industrialization of a nation that was agrarian society when the Bolshevik revolution took place in 1917. इसका मतलब है उस समय शुरू नहीं हुआ था, रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, क्योंकि प्राइमरीली एग्रेरियन ये यूज किया है. तो नहीं, बी इज ऑल्सो नॉट राइट. बट यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि उन्होंने ना व्हाइट ना ब्लैक ये डिसाइड किया था. दे हैड टेकन इट एज अ ग्रे, राइट. तो ग्रे मतलब उन्होंने वीक फॉल्ट्स जो है उनका ध्यान तो दिया था. पेड हीड मतलब ध्यान देना, पेड अटेंशन. तो यस, बट इतना ज्यादा दिया था क्या? नहीं. शेड्स ऑफ ग्रे के साथ ग्रेन्स ऑफ यूनिकनेस है. एंड और एट द सेम टाइम इंडियंस हैड रिएक्टेड नेगेटिवली टू व्हाट गवर्नमेंट हैड डन टू इट्स पीपल. तो ए इज राइट. वीक फॉल्ट्स का, पॉलिसीज और सिस्टम्स का उन्होंने हीड लिया था. यस, इट्स राइट. इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ था क्या? नो, बिकॉज ऊपर लिखा है कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद चालू हुआ है एंड रैपिडली हुआ है एग्रेरियन सोसाइटी का इंडस्ट्रियलाइजेशन. अचीवमेंट्स का कमेंडेशन हुआ था क्या? यस, तारीफ हुई थी मतलब कमेंडेशन हुआ था. एंड लिटरेचर, आर्ट एंड म्यूजिक सेटबैक नहीं, बिल्कुल नहीं, आउटपोरिंग हुआ था. सेटबैक का एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्ड है आउटपोरिंग. सो द आंसर ऑफ दिस विल बी ए एंड सी इज करेक्ट. B and D are wrong. So whatever is asked. So what is asked, what is correct? So answer will be A and C. Okay, next one.
Indian perception of the Soviet Union was always. अब यहाँ पे अगर ब्लैक एंड व्हाइट टर्म्स में होता तो या तो वी वुड हैव सेड क्रिटिकल और वी वुड हैव सेड अपलॉडिंग. अपलॉडिंग मतलब व्हाइट देखते सब कुछ कितना सुंदर है. क्रिटिकल मतलब ब्लैक देखते अरे यार ये तो कोई प्रोग्रेस है ही नहीं. नहीं, क्या बोला है? ग्रे. एंड विथ द ग्रे वाज ऑलवेज मिक्स्ड द ग्रेन ऑफ यूनिकनेस, तो इट इज न्यूट्रल. काउंटर रिएक्शनरी इज ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड, इसलिए वो भी नहीं है लागू. फ्रेंडशिप अगर वर्ड होता न्यूट्रल एंड फ्रेंड्स तो और ज्यादा करेक्ट होता, बट न्यूट्रल ये सबसे करेक्ट आंसर है. सो वेस्ट डिड नॉट फोकस ऑन, ये तो पहले ही पैराग्राफ में लिखा है कि ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर फोकस किया है, मास माइग्रेशन के ऊपर फोकस किया है. तो फिर क्या बचा? रैपिड ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर वेपन, तो इट डिड नॉट फोकस ऑन बी. I repeat, did not focus on. Guys, please questions ध्यान से पढ़ना. Did and did not पढ़ते समय कभी कभी मिस्टेक हो सकती है कि exactly पूछा क्या है. ओके या अब पैसेज क्या है? थॉट प्रोवोकिंग है, पैराडॉक्सिकल है, एनालिटिकल है या डिस्क्रिप्टिव है? अब इस हर वर्ड का मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए. वी शुड नो द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड. तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? डिक्शनरी लेके तो बैठ नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे? You guys have to go on reading the general English, not the paper वाला English जो Indian Express वगैरह में लिखा रहता है. No, you have to go and you have to read some good books. बहुत जरूरी है guys. डिजिटल मीडिया है, लॉकडाउन था, अभी कुछ जगह होगा भी. आप लोगों को जब भी टाइम मिले प्लीज बुक्स पढ़िए. बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है बिकॉज उसमें नए नए वर्ड समझ में आते हैं एंड वी कैन गो अहेड एंड वी कैन फाइंड आउट मोर. ओके, तो एनालिटिकल है क्या? यस, एनालिसिस तो हो रहा है सिचुएशन के बारे में. पैराडॉक्सिकल है क्या? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडॉक्सिकल? पैराडॉक्सिकल मीन्स समथिंग दैट इज one thing is saying a thing, white thing पूरी तरह से, and one thing is saying an entire black thing. पैराडॉक्स एक दूसरे के अपोजिट्स है क्या? यस, यहाँ पे इंडिया का जजमेंट ऑफ रशियंस है एंड वेस्टर्न के जजमेंट ऑफ रशियंस है. थॉट प्रोवोकिंग है क्या? हाँ वो भी है. डिस्क्रिप्टिव है क्या? हाँ वो भी है, डिस्क्रिप्शन है. तो फिर हम लोग आंसर क्या दे? व्हाट इज इट मोर? अब ध्यान से देखते हैं. व्हाट इज इट मोर डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन अगर बाकी सब चीजें अनवैलिड होती जो ज्यादा करेक्टली उस पैसेज को डिस्क्राइब कर रही तो ही डिस्क्रिप्टिव होता. ओके यहाँ पे वेस्टर्न इंडियन ये हमेशा कंपैरिजन किया गया है, ऐसा है क्या? यस, द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन परसेप्शन एंड वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स हमेशा दिया है. ऑलवेज इट इज गिवन. थॉट प्रोवोकिंग है क्या? है. अब डिस्क्रिप्टिव से ज्यादा करेक्ट आंसर है थॉट प्रोवोकिंग. लेकिन सिर्फ थॉट प्रोवोक कर रहा है क्या? अगर सिर्फ इंडियंस रशियंस के बारे में क्या सोच रहे ये दिया होता तो यस थॉट प्रोवोकिंग होता. यहाँ पे नहीं. एनालिटिकल है क्या? हाँ बिल्कुल एनालिटिकल है, बट एनालिटिकल से भी ज्यादा कंटिन्यूअसली ये फोकस किया गया है कि इंडियंस रशियंस को कैसे देखते हैं और वेस्टर्नर्स रशियंस को कैसे देखते हैं. इसलिए सबसे करेक्ट आंसर है सी, पैराडॉक्सिकल. तो इस तरह से एनालिसिस करने के बाद वी कैन गो अहेड एंड गेट इट कंप्लीटली राइट. इसलिए गाइस प्लीज रीड बुक्स, प्लीज प्रैक्टिस अ लॉट. बहुत ही ज्यादा जरूरी है. प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट. ओके, मैंने आप लोगों को किस तरह सोचना है वो बताया है. सबसे पहले फर्स्ट थिंग, ओके, first thing is to check out what kind of paragraph it is. Is it a history related paragraph, geography related, political science related, social science related, या फिर science related खाली. तो ऐसे कुछ है क्या? जनरली हिस्ट्री रिलेटेड पैराग्राफ्स आते हैं. ऐसे भी पैराग्राफ्स आते हैं जिसमें साइंस के डिस्कशन हो रहे थे, टेक्नोलॉजी के, जो हाँ एक बात नोट करने लायक है. मोस्ट ऑफ द टाइम पैराग्राफ्स विल कम फ्रॉम दैट टॉपिक विच आर ट्रेंडिंग. इसलिए गाइस प्लीज पे अटेंशन टू द ट्रेंडिंग टॉपिक्स इन दैट ईयर.
ओके या सो 2021 के लिए 2021 के लिए जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे प्लीज आप लोग ध्यान रखिए, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में ड्रग्स, ये टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग है। तो गाइस उसके रिलेटेड आप लोगों के पास मेडिसिन के कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ्स बिल्कुल आ सकते हैं, आप लोगों के पास पॉलिटिक्स रिलेटेड आ सकते हैं, बिहार इलेक्शंस जस्ट हुए हैं वो आ सकते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दिए गए हैं उसके बारे में आ सकता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू ट्रैवल, लॉकडाउन इतना बड़ा कोविड हो गया है, ऑफ कोर्स यू गाइस नो दैट, उसके ऊपर मेडिकल के आर्टिकल्स आ सकते हैं जिसमें हमारे बॉडी के पार्ट्स के नाम दिए जा सकते हैं, उन्हें ट्रीटमेंट कैसे करना है वो वगैरह सब पैराग्राफ में दिया जा सकता है। तो यू गाइस कैन गेस द टाइप ऑफ पैराग्राफ्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेक करना है, उसके बाद क्वेश्चंस रीड करने हैं, कभी कभी एक से ज्यादा आंसर्स राइट होते हैं, उसमें फिर सबसे ज्यादा राइट जो आंसर्स है, द आंसर विच इज द मोस्ट राइट इज टू बी सिलेक्टेड एंड दैट डिपेंड्स ऑन यू गाइस एंड योर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। Like I said before also, descriptive answer right था, analytical right था, thought provoking right था, लेकिन सबसे ज्यादा western and Indian thinking on what, on Russia was compared, then paradox was the most right answer। ये बात आप लोगों को guess करने को आनी चाहिए। You must practice figures of speech, which will be our topic tomorrow। So guys, have a good time। Thank you so much for listening to my lecture। I hope you guys have understood how to analyze the comprehension, how to answer it, how to check out when more than one answer seem right, like in question number 15 we have done, and how to think about starting a comprehension passage. Okay? Keep learning with Priyanka Fabulous. Keep enjoying the learning and earning and have lots of fun. Love you.